تجوید کے قواعد سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 5واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن، دیکھیے ومن کے نون میں اظہار ہو رہا ہے تو اس نون کو جلد پڑھنا ہے۔ جس حرف پہ زبر زیر پیش ہے ان سارے حروف کو جلد ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ یہ نون ساکی، یہاں پر یہ نون میں اظہار ہو رہا تو اس نون کو بھی جلد پڑھنا ہے۔ احسن، دینم، دیکھیے یہ سب میں احسن، سین میں نون میں یہ سب میں کیا ہے، زبر ہے پیش ہے تو اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ دینم، یہاں پر دی میں دیکھیے یا مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نم، نم میں ادغام ناقص ہو رہا ہے، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ ممن، یہاں پر میم مشدد ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا، اور نون میں اظہار ہوگا، اس نون کو جلد پڑھنا ہے۔ اسلم، یہ زبر زیر والے کو جلد پڑھنا ہے۔ وجہہ، جیم میں قلقلہ ہوگا۔ ہہو، یہاں پر ہا میں الٹا پیش ہے، الٹا پیش واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ للہ، یہاں پر اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے اور کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ وہو محسن، نو میں ادغام ناقص ہو رہا ہے، اسے غنہ کے ساتھ میں ادا کریں گے۔ واتبع ملت ابراہیم، با میں یہاں پر قلقلہ کرنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے اور کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہیما، یہاں پر یا مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حنی میں یا مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فا، یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، جیسے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ وَاتَّخَذَ، یہاں پر واو کو تا سے ملا کر پڑھنا ہے، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے۔ خاضہ میں خو کو پر پڑھنا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اللہ کو بھی پر پڑھنا ہے، کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ابراہیمہ میں با میں قلقلہ کریں گے، را کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہیما میں یا مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خلیلہ، خو کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، لی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، جیسے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ وَلِلَّهِ، یہاں پر اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ما میں الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی السماواتی، ما اور وا دونوں میں کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو ضاد کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ وَكَانَ، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اللہ کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بِكُلِّ شَيْءٍ، شَيْءٍ یہاں پر یالین ہے تو اسے جلد پڑھنا ہے۔ ام میں ادغام ناقص اور غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ محیطہ، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تو کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، جیسے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، تو میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فِي النِّسَاء، نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا، اور یہ جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ، قاف کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اللہ کو باریک پڑھیں گے اور کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یفتیکم، تی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، تو کم کے میم میں اظہار شفا بھی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا۔ فیہن، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور ہن نون مشدد ہے تو غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر لام الف آیت کے بیچ میں ہے تو یہاں پر وقف نہ کرنا بہتر ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم ملا کر پڑھیں گے۔
वमा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। युतला, तल्ला में खड़ा ज़बर है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलैकुम, यहाँ पर यालीन है, इसे जल्द पढ़ना है। कुम के मीम में इज़हार शफवी हो रहा है, इसे भी जल्द पढ़ना है। फिल किताबी, ता में खड़ा ज़बर है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फ़ी यतामा, फ़ी में या मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यतामा, ता में खड़ा ज़बर है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मन निसा, नून मुशद्दद गुन्ना होगा। सा में मद है, मद्द मुत्तसिल, इसे 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इल्लाती, ला में खड़ा ज़बर है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ती में या मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ला में अलिफ मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तू ना, यहाँ पर हमज़ा साकिना है, झटका लगेगा। तू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हुन्ना, नून मुशद्दद गुन्ना होगा। माँ में अलिफ मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लहुन्ना, नून मुशद्दद गुन्ना होगा। वतरगबूना, रॉ को पुर पढ़ेंगे, गैन को पुर पढ़ेंगे। बू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अन के नून में इख्फा होगा, नून के आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। और तन की हो हुन्ना, इस नून में भी इख्फा हो रहा है। हु में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हुन्ना, नून मुशद्दद है, तो इसे गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। और वल मुस्तदअफीना, गौद को पुर पढ़ेंगे हुरूफ मुस्तालिया में से। फ़ी में या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे इसे। मिनल विलदानी, दा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। व अन के नून में इख्फा हो रहा है, नून के आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। तक़ूमु, कौफ को पुर पढ़ना है और वाव मद्दा है, मुँह में भी वाव मद्दा है, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लिल यतामा, ता और माँ दोनों में खड़ा ज़बर है, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बिल क़िस्त, कौफ को पुर पढ़ना है, तौ को भी पुर पढ़ना है, और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो तौ में कलकला भी करना है। तो इसको देखिए, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। वयस्तफ्तूनक फिन्निसा कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्न वमा युतला अलैकुम फिल किताबि फी यतामन निसाइ अल्लाती ला तुअतूनहुन्न मा कुतिब लहुन्न वतरगबून अन तंकिहूहुन्न वल्मुस्तضعफीन من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط। वमा में अलिफ मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तफ़अलू, रू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मिन खैरिन, देखिए इस नून में कोई हरकत नहीं है, यहाँ पर जज्म होना चाहिए और इस नून में इजहार होगा, इस नून को जल्द पढ़ना है। खैरिन, खौ को पुर पढ़ना है और यहाँ पर यालीन है, इसे जल्द पढ़ना है। रिन में रॉ को बारीक पढ़ना है और तनवीर में इख्फा हो रहा है, इसकी आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। फ़इन्ना, नून मुशद्दद गुन्ना होगा। अल्लाह को पुर पढ़ना है, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। काना में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बिही में खड़ा ज़ेर है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलीमा में या मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे। जैसे वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा। आगे व इनिम्रअतुन, रॉ को यहाँ पर पुर पढ़ेंगे, ठीक है। तुन में इजहार हो रहा है, इस तनवीन को जल्द पढ़ना। खौ को पुर पढ़ना है, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मिम बालिहा, नून साकिन के बाद बा है तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ में पढ़ेंगे। बालिहा, हा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नुशूजन, शू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जन की तनवीन में इजहार हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। औ में वाव लीन है, इसे जल्द पढ़ना है। इअरादन, रॉ को पुर पढ़ेंगे और अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ज़न, ज़ाद को पुर पढ़ना है और ज़ाद की तनवीन में इख्फा करना है। फला में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जुना में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलई में या लीन है, इसे जल्द पढ़ना है। हिमा में जो मद है, मद मुनफसिल है, इसे 3-4 अलिफ के बराबर खींचते हैं और एक अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ सकते हैं। आई में इदगाम नाक़िस और गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। युस्लिहा, सौद को पुर पढ़ेंगे। हा में अलिफ मद्दा है तो इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बैनहुमा, या लीन है, इसे जल्द पढ़ना है। हुमा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। सुलहा, सौद को पुर पढ़ेंगे और हा यहाँ पर वक्फ करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे। जैसे
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. यहाँ पर सौद को पुर पढ़ना है और खैर में खा को पुर पढ़ना है, या लीन है यहाँ पर, ठीक है, या लीन है तो, और उसके बाद यहाँ पर रॉ पर वक्फ करेंगे तो रा का जो दो पेश की तनवीन सुकून से बदल जाएगा, तो इस सुकून को सुकून आर्जी कहते हैं। और इस सुकून आर्जी से पहले या लीन है तो यहाँ पर मद्दे लीन आरिज होगा। मद्दे लीन आरिज में तूल तवस्सुत कसर तीनों जायज़ होता है, तीनों तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन कसर बेहतर होता है, ठीक है। और रा को यहाँ पर बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि रा साकिन से पहले जब या साकिन हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं, तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। वस्सुल्हु खैर। देखिए ज़ाद को पुर पढ़ना है, रा को पुर पढ़ना है, कि नून में इख्फा होगा, नून के आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना है। शुह यहाँ पर वक्फ करेंगे तो शुह हा का ज़बर सुकून से बदल जाएगा, लेकिन हा की आवाज़ ज़ाहिर होगी, तो इस तरीके से पढ़ेंगे। वउहज़िरतिल अंफुसुश्शुह। व इनके नून में इख्फा हो रहा है, तुहसिनू नून में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वतत्तकू कॉफ को पुर पढ़ेंगे, वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फ़इन्ना नून मुशद्दद गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। काना में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बीमा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तामलून नून में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। खबीरा खा को पुर पढ़ेंगे, बी में या मद्दा है, रा को पुर पढ़ेंगे और एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे वक्फ की सूरत में, जैसे وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تو اس